So first of all, hey guys, my name is Ambar Gautam. So I'm working as a SD2 senior software engineer. Both are same in a Innovator Analytics or Innovator Health Limited in Abu Dhabi. Basically, it's in the Middle East, and I'm having around 4.5 plus years of experience in backend development in multiple tech stack and cloud and you can say developing architecture and all. So yeah, today I'll be giving you insights about the system design. So yeah, over to you, Nishant. Yeah, so let's wait, just let's wait till 7:10, hope. So everyone will be here. I mean, good amount of people are already here. We will start after that, and after that, it's all up to you. So where are you currently right now? So currently I'm in Abu Dhabi. So Okay, we okay, okay. recently shifted around 2 or 3 months back. Oh, Yeah. I mean, that's great. I think we may start now. If uh, if you're okay, like we may start now. Yeah, sure. Hmm. So okay, Okay. I'll start. I'll share my screen first. Mm-hmm. Let me know once visible. Yeah, it is. It is Okay. visible right now. Okay, so I think the audience are comfortable in both English and Hindi, correct? So, well, like, because I want this session should be a kind of discussion session instead of some kind of professional talk, or you can say a formal talk. Hello? Yeah, we are. So anyone who is not willing to speak, you can just put your whatever you want to say in the chat section, or you can just react and let us know. Yeah, guys, you can ask question in between as well whenever you have some doubt, or you can also put in chat. Both the ways should work. Okay. Yeah. So I'll start presenting my screen. So first of all, today's talk session is on system design, and I gave my brief introduction. So let's start from here. So before starting, I have a very simple question. So how many of you know exactly what is system design? Anyone? Guys, I want this section should be like interactive in both ways. So yeah, we can discuss and we can talk as well. Yeah. Anyone, please? No one. Okay. Yeah. Anyone is saying something? Okay. Yeah, so let me take a very simple example. For example, whenever you start building any application, okay, or let's say if someone has a very great idea and start working on his idea, and you can say it's creating its own startup. So what is the first thing come into in our mind कि यार मेरा architecture क्या होगा, like how the things will work. Okay, for example, I want to create a delivery application. Okay, first of all I need to figure it out how will that work, वो काम कैसे करेगी. यूजर एप्लीकेशन पे आएगा, यू कैन से इट्स अ फूड डिलीवरी, उसके सामने लिस्ट होगी एक पूरी रेस्टोरेंट्स की, लाइक फूड आइटम्स की, कुजीन्स की. देन सेलेक्ट करेगा, उसके बाद कार्ट में डालेगा काइंड ऑफ, और यू कैन से मल्टीपल आइटम्स. आफ्टर दैट चेकआउट एंड देन पे. ओके, आफ्टर दैट उसका ऑर्डर ट्रैक होएगा. Once the order will deliver, then the like complete order will complete, like order will complete. Okay, so this particular process is in our mind right now. But if I want to implement this, I want a very clear picture
how things should work. So system design is something creating that particular picture, or you can say designing that particular picture somewhere. So if I talk about the simple definition, the process of designing the elements of a system, such as the architecture, its module, components, and the different interfaces of those components, and the data goes through that system. So basically मेरा data कैसे travel करने वाला है, I should know. So इन सारे components को मिला के what will be the whole application, we need to create design for that particular application. This is system design. So in a very layman term, designing a system. Okay, now pillars of system design. So at a very high level, we have 4 pillars of system design: scalability, performance, reliability, and availability. Okay, now let's understand each of them one by one. So first of all, scalability. So I just read the definition and then we'll know what actually it is. System, application, or infrastructure to handle an increased amount of workload, resources, while maintaining or improving its performance. Yeah. So let's say कि एक application जो हमारा, let's take an example of the food delivery same app, कि आपने application launch किया, 10 यूजर्स आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, वो सही चल रहा है, बट सडनली ऐप फेमस हो जाता है फॉर एग्जांपल, एंड कस्टमर्स आर स्टार्ट कमिंग एंड वो थाउजेंड्स में, देन 100,000 एंड देन मिलियन. Okay, now in that particular case, in a 100 million user, we want our application should work same as it was work earlier for 1 or 10 users. ओके, तो हमें सिस्टम को इतना स्केलेबल बनाना है बेसिकली कि कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स आए, कितने भी हिट आए, आवर सिस्टम शुड स्केल एंड इट शुड वर्क एफिशिएंटली. ओके, नाउ देन परफॉर्मेंस. So performance is, it refers to the speed, efficiency, and responsiveness of the system. So same, whenever any request hit, I'll take some technical perspective here कि एक request hit करी client ने, then server के पास गई, server perform some queries in the database, and then some business logic should perform. So this particular time period should be fast. Okay, the response time, your throughput, basically the response when the client request and receive the response, it's throughput. Your resource utilization, we like resource should utilize as minimum, because resource direct, when you can say ki increase in resource is directly proportional to the increase in cost. At the same time हमें cost भी check करनी है कि हमारी cost like increasing your rapidly ना बढ़े. Okay, now थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी. ओके, अब मेरा सिस्टम काम कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, सडनली कुछ फेलियर हो गया, यू कैन से सर्वर गोज डाउन, देन व्हाट हैपन? सर्वर गोज डाउन, योर एप्लीकेशन स्टॉप. नाउ इन अ startup world, or you can say in a product based world, if your application is down, then you are losing money simply. So our system should be that scalable, or you can say that available, it never goes down. So, and another one is reliability. So reliability is simply you can link with some availability, because whenever the system down, you can say one of, like we have multiple servers, or once 1 or 2 server goes down, or some error or some fault occur, system should heal itself. मतलब अगर कुछ डाउन हो गया, वो खुद से उसको ठीक करे. Correct. So these are the 4 pillars of system design. I repeat again: scalability, performance, availability, and reliability. Now the next question is, how can we achieve these? Sorry to interrupt, but yeah, so sorry to interrupt, but is it microservices and etc. what we are saying now, that they divide everything in microservices? So is it also part of this? Yes, like I start with, while designing a system, this is our main goal. We need all of these. Okay, and Okay. we need to, a microservice is a way, or you can say is a part of designing a system to achieve these. Okay, got it. Okay. Sorry. Yeah. So this is our goal. Like हमारा system इतना scalable होना चाहिए, fast performance देना चाहिए,
24 hours, or you can say 24 hours, 7 days, month, years, never goes down. And if any failure occurs, it will heal itself. That's it. ये हमारा मेन गोल होना चाहिए सिस्टम का, बिकॉज अगर आपका सिस्टम परफॉर्म करेगा, यूजर्स आएंगे, थाउजेंड्स में यूजर्स आ रहे हैं, और यू कैन से मिलियंस में आ रहे हैं, सिस्टम स्केलेबल है, खुद से स्केल कर रहा है, देन योर सिस्टम ऑलवेज वर्क. ओके, yeah. Now there is another term, distributed system. So for example, I'll take a very simple example. In our colleges we always study, there is a client, there is a server, and there is a database behind this. Like user, or you can say client hit a particular server goes to the database, fetch the data, return to the client. Okay, this is a very simple architecture, and everyone you can say study, I think, once in a while in college days. Okay, now what is distributed system? So I'll just read the definition, then we'll explain. Distributed system are a type of computing system in which, just focus on this, multiple computers, also referred as nodes or processors, work together to solve a problem or task. Okay, so for example, I'm getting a lot of hits, or you can say lots of users are coming to my application, and I have only single server, or here nodes represent the server and processor also represent the CPU, or you can say it's a server, in a very layman term. Okay, like number of requests are coming and multiple users are onboarding in my system. I have only one single server. Will that works? No, I need to create multiple servers to you can say like persist all these requests, okay, to process all these requests. Now if I scale multiple servers, I'll put 2, 3, 4, 5 servers. Now the request will divide in those multiple servers. Okay, after that, those servers, let's say those servers want to talk each other. For example, there is a B C D there are like 4 servers. Now both are performing some different tasks. Now they also want to talk each other. So this is something distributed system. We have multiple nodes and they also interacting with each other. Okay, so I like this. If you guys are getting confused for this particular term, this will understood, you can say, within a few upcoming slides, because whenever I'll open the whole architecture. So some key characteristics. Concurrency. So concurrency is something very crucial in terms of system design. Our system should be that concurrent. If data is updated at A, it should reflect at the same time B, basically. For example, let's say in a banking system, if someone transfer money from A to B, then B should immediately see his amount. Our data should be like concurrent. Then scalability, as I mentioned earlier, systems should be scalable, fault tolerant. So what distributed system does, as I said, there are multiple nodes, multiple server. If one server dies, nothing happened, we have 3 servers, they will handle the load. If 2 die, we have 2. So it will, you can say, like it will tolerate your errors, it will tolerate your faults. Consistency and replication. So replication is we have a like complete section of replication. So basically replication is something creating multiple copies. Okay, then resource sharing. Resource sharing is something I have a multiple servers, or you can say multiple machines or multiple storage system, and I divided into multiple PCs. So they are doing separately their work, but their resources are sharing. For example, I have 100 GB of storage and I created 5 databases, multiple. So this resource is shared, and those databases are like doing their own work. Okay. So this is simply, we have 5 server here and both are connected with each other. Okay, so they are sharing data and they are talking to each other. There are network calls happening here. Okay, so let's move the next part, which is latency. So latency is a very generic term which we use while creating system, or you can say while building some application. So latency is something, the amount of time takes for a specific action or data to travel from source to destination. In a very simple term, अगर एक client
रिक्वेस्ट हिट कर रहा है, उसको जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बीच का जो टाइम है उसको हम लेटेंसी बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स. नाउ व्हाट आवर गोल शुड बी, लेटेंसी एज मच एज लो, बिकॉज अगर मेरी रिक्वेस्ट 10 सेकंड ले रही है, नो वन शुड यूज माई एप्लीकेशन. लेटेंसी शुड बी इन मिली सेकेंड्स. ओके, नाउ लेटेंसी कहाँ पर आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क लेटेंसी. लेट्स से नेटवर्क इज डाउन एंड नेटवर्क इज रनिंग स्लो, so it could also occur latency. Storage latency, let's say storage is also, your DB is also hosted on some on-premise server, or you can say DB is hosted on some managed services. There is a latency in that particular system. Application latency, in application latency we have very heavy complex logic in our code which is taking time. We are not using some effective data structure, that's why like fetching from database or doing some processing, it is taking much time. So this is basically comes under the latency. In a very simple word, the time which is taken by the request and the response. Okay, now throughput, the rate at which data can be processed or transmitted within a system or network. So throughput is basically, it is like कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि थ्रूपुट और लेटेंसी में क्या डिफरेंस है. Okay, so throughput is something, the data can be processed or transferred within a system or network. So मेरा कितना amount of data एक particular time में process हो रहा है. For example, within a second, how much requests are hitting and giving the response. So the amount of request or the amount of action is basically throughput, and the time between those particular action is a latency. So इससे क्या conclusion? The throughput should be high as much as it is, and the latency should be low. Okay, so guys, any doubt yahan tak? Then we'll continue. Anyone? Just give me thumbs up so I can continue. Yeah, okay. So consistency. So as I told earlier, consistency should be like data should reflect at the same time. So let's check the definition. All the nodes or replicas will return the same result with most recent data. Here it is, return the same result with the most recent data. Okay, as I gave the example of banking system, like if A user sends some money to B user, then B user does not want to delay of multiple days, or you can say multiple hours even. Okay, now consistency has like multiple types, so basically categorize in three ways. You can say weak consistency, strong consistency, eventual consistency. Okay, so in weak consistency, after just read this particular line. After a write, reads may or may not see. Let's say whenever in a particular database any, you can say any particular data is written. Okay, now the end user, it is not like not mandatory the end user will see that data as quick as possible. This is weak consistency. Or I'll give you a very simple example for this. I think YouTube और Instagram सब यूज करते हैं. So Instagram पे हमें दिखाता है कि like for a celebrities there are 5 million followers, there are 20 million followers, they show 2M, 5M, 20M, but they does not show the 20,000, or you can say 20 million, 50,000 and 1, even the like last single digit, because they does not require it. They only require the 20 million. इसलिए अब मेरे डेटाबेस में लेट्स से एक सेकंड में hundreds of followers ऐड हो रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर सेलिब्रिटी और फॉर अ पर्टिकुलर यूजर. नाउ दे डोंट नीड कि यार मैं उनको क्विक फैच करके निकालता रहूं, उनको दिखाता रहूं कि 200 मिलियन 1 हो गए, 200 मिलियन 2 हो गए. दे आर ओके विद दिस. दे शो ओनली 20 मिलियन 20M. अगर उन्हें लगेगा कि यार 20 मिलियन पर 21 मिलियन हो गए या फिर 21.5 मिलियन हो गए, देन दे विल शो 21.5, 22.5. Okay, so this is weak consistency, like where we do not need to like see the exact count.
a very simple example, or you can say very funny example. I think Instagram सब चलाते हैं. So whenever any celebrity, or you can say the influencer uh, like post a new vlog, so उनके fans वहां पर उसको repost करते हैं, like this is my first view, this is my first view. Ever think like एक साथ 10-15 लोगों ने फर्स्ट व्यू कैसे डाल दिया, 0 व्यू आ रहे होते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ वीक कंसिस्टेंसी. क्योंकि देख एक यूजर है लाइक एक कंट्री में, दूसरा दूसरी कंट्री में, सो दे डू नॉट सी द एग्जैक्ट काउंट विद इन अ सेकंड्स, और यू कैन से व्हेन द डेटा इज पोस्टेड. So this is weak consistency. Now let's come the strong consistency. After a write, reads will see data is replicated synchronously. Okay, so data is replicated. I'll come up this term later. So first of all, very simple. After a write, read will see. जैसे ही डेटा 1 DB में राइट होगा, यूजर को दिखने लग जाएगा उसी टाइम. अगर फैच करने में टाइम लग रहा है, द सर्वर विल प्रोसेस दैट डेटा, बट दे डू नॉट show the inconsistent data to the user. Okay, data replicate in synchronously. I'll come up this term later. Now eventual consistency. After a write, reads will eventually see, typically within a milliseconds, data is replicated asynchronously. So basically eventually means like after a delay of 1 second or 2 second, then user able to see the exact like the latest data. Okay, now there is a cap theorem. This is a very interesting, or you can say very famous term in terms of system design, cap theorem. So it's a trade-off between the 3 properties of distribution, which is consistency, availability, and partition tolerance. Okay, so consistency, as I mentioned earlier, all the nodes or replicas will return the same result with most recent data. Second, it ensures that every request made to the system will receive the response. Like system should be available. अगर किसी यूजर ने रिक्वेस्ट करी है, it doesn't mean कि उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, it means system available नहीं है, system down है. It should not happen. Third one is partition tolerance. System's ability to continue when any communication failure occur between nodes. Means अगर multiple servers हैं, 2 nodes के बीच में अगर communication fail हो जाता है, it means whole system should not die. Only that particular component should die or should not work. Let me give a very simple example. कि इंस्टाग्राम चलाते हैं हम, लिंक्डइन चलाते हैं हम, एवर नोटिस लिंक्डइन की फीड्स काम नहीं कर रही, बट हमारी प्रोफाइल काम कर रही है, बट नोटिफिकेशंस काम कर रहे हैं. समटाइम्स नोटिफिकेशन वोंट वर्क बट फीड्स काम कर रही हैं. इन केस ऑफ इंस्टाग्राम रिसेंटली हैपन, इंस्टाग्राम सर्च इज नॉट वर्किंग बट स्क्रॉल फीड इज वर्किंग, मैसेजेस आर नॉट वर्किंग बट अदर कंपोनेंट्स आर वर्किंग. इट मींस सिस्टम तो अवेलेबल है, बट उसके बीच के कुछ components और nodes का connection break हो गया. Basically they are not working, or they die, the server like won't working, or you can say down because of some reason. Okay, now what cap theorem says? Cap theorem says there is a trade-off between these 3 properties, that at a same time we can utilize only 2 of them. Either it's consistency or availability, either it's availability or partition tolerance, or either it's consistency or partition tolerance. Let's just try to combine those. First of all, consistency or availability. Okay, now we want हमारा डेटा भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए और हमें अवेलेबिलिटी भी चाहिए. Okay, अब अवेलेबिलिटी मीन्स कि मेरा सिस्टम हमेशा अप होना चाहिए. अब सिस्टम हमेशा अप रखने का क्या तरीका है कि यार मैं उसको रेप्लिकास बना देता हूँ, उसके मल्टीपल. फॉर एग्जांपल, आई हैव अ वन डेटाबेस. अब एक डेटाबेस से आई एम फैचिंग मल्टीपल डेटा फॉर यूजर्स, बट अगर एक ही डेटाबेस है और यू कैन से एक ही सर्वर में होस्टेड है, अगर वही सर्वर चला गया तो मेरा सिस्टम वुड डाई. बट आई डोंट वांट दैट. बट आई वांट, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल क्रिएट रेप्लिकास फॉर दिस. नाउ अब मैंने एक डेटाबेस के मल्टीपल रेप्लिकास बना दिए. सो व्हाट रेप्लिका डज? रेप्लिका रीड लाइक इज अ रीड हैवी. अब फॉर एग्जांपल, अगर एक डेटाबेस है मास्टर डेटाबेस जिसमें सारा डेटा राइट हो रहा है, नाउ व्हाट दैट डेटाबेस डज, वो असिंक्रोनसली और सिंक्रोनसली रेप्लिकास में डेटा डंप करेगा. इट्स अ डुप्लीकेट डेटा, इट्स अ रेप्लिका. ओके, नाउ यूजर विल रीड फ्रॉम दोज रेप्लिकास. अब सिस्टम को अवेलेबल करना है, वी विल क्रिएट रेप्लिका, बट डेटा हम रीड कर रहे हैं रेप्लिकास से. ओके, अब रेप्लिका में डेटा जा रहा है धीरे धीरे, इट इज टेकिंग सम टाइम, लेट्स से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, देन कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी हमें.
करेक्ट। बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी तो अवेलेबिलिटी के साथ हमें पार्टीशन टॉलरेंस मिल जाएगा, बिकॉज मेरे पास रेप्लिकाज है, लेट्स से 5 सर्वर पर मैंने डीबी होस्ट कर रखा है, one of the server would die, no issue, 4 servers are working. Okay, so now let's try another two, consistency and partition tolerance. Like this would not happen because अगर nodes failure हो रहे हैं तो consistency नहीं आएगी data में. Okay, so at the same time we can avail only two properties of the CAP theorem. Now next part, the replication. Like this is one of the major factor we can we utilize in while creating the distributed system in system design. So let's jump to the very basic definition. Maintaining multiple copies of data or resources across the node to make system fault tolerant and data available. As I said earlier, we have this server, we have this master database, read replica 1, read replica 2. Okay, whenever a client hit a particular post request, like I think post get everyone knows, तो request hit हुई, hit होने के बाद master database में write करा. Okay, so this is the main source of truth. इसमें data कभी गलत नहीं होना चाहिए because this is my master database. Okay, now what master database does, it will replicate data in both the replicas by using synchronously or asynchronously. Now just conscious because I'll try to connect the dots. Okay, अब कंसिस्टेंसी का पार्ट देखते हैं इसमें, वीक कंसिस्टेंसी, इवेंचुअल स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी. नाउ वीक कंसिस्टेंसी कैसे आती है कि मास्टर डेटाबेस में डेटा आ गया बट रेप्लिकास में आई वांट कि यार मैं डेली बेसिस पर डंप करूंगा, आई क्रिएट अ क्रॉन एट 9 AM डेली, तो 9 बजे सारा डेटा इसमें डंप होता रहेगा. अब यूजर्स तो लाइव है ना, यूजर्स it doesn't matter like users are using at 9 AM or hitting request at 10 AM to like 1 PM, they are continuously fetching data from read replicas. Data यहाँ पर नहीं है, वो आएगा एक दिन बाद. This is a weak consistency. Okay, now strong consistency. In strong consistency, अगर request hit हो रही है यहाँ पे, data write हो रहा है master DB में, at the same time data write होगा replicas में synchronously before returning response to the client or user. Okay, it makes sure that at every point, or you can say at every single millisecond, in both the databases, in two replicas and in two DBs, data should be same. There is a strong consistency. Now user try to read from here, from here, from here, data will always be same. The third we like saw earlier, eventually consistency. Now in eventual consistency, the data will update in replicas asynchronously. So asynchronously means request hit, यूजर ने डेटा अपने मास्टर डीबी में कुछ ऐड कर दिया अपना, नाउ यूजर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा बट रेप्लिकास में अपडेट होगा सेम टाइम पे बट इन असिंक्रोनस मैनर, मींस रिक्वेस्ट वॉन्ट ब्लॉक विद इन यू कैन से फ्यू मिली सेकेंड्स और विद इन सेकेंड्स. ओके, सो request पहुंच गई, but yeah, what we study in eventual consistency, after a write, read will eventually see typically within a millisecond. So asynchronous updating data take a few milliseconds to update data in replicas. Okay, now let's check these two terms, fault tolerant. Now one of my DB die, doesn't matter because we have these two DBs as well. Data यहाँ से आना शुरू हो जाएगा, ये हो गया, ये भी डाई हो गया, एक और बचा हुआ है बट तीनों डाई हो गए, दैट्स अ डिफरेंट केस. डेटा अवेलेबल, डेटा हमारा अवेलेबल है. ओके, सो एनी डाउट अप टू हियर, एनीवन? प्लीज गिव थम्स अप. Okay, so there is a very new term, CDN, content delivery network. Okay, so let's take a very simple example. Let's say I'm here in UAE and I'm opening a website which is hosted in US. Okay, you guys are sitting in India, you are like opening that particular website from India which is hosted in US. Now the data travels from US to UAE or to India, it takes some time. Like it will not like you can say the page will not show within a seconds or within a milliseconds. Then what should we do?
So इस केस में हमारे पास नई टर्म आती है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. Let's take the definition. So content delivery network is a globally distributed network of proxy servers. Proxy servers means some identical servers, मतलब कि एक मेरे जो मेन सर्वर है उसके आगे मैंने एक सर्वर लगा दिया. Serving content from locations closer to the user. This is very important. अब मेन वेबसाइट होस्टेड है यूएस में, बट serving content from location closer to the US. But I'm sitting here in UAE. You guys are sitting in India. So they put servers in your location, in my location. So जैसे ही डेटा वो होस्ट करते हैं यूएस में, दे ऑल्सो होस्टेड दैट पर्टिकुलर डेटा इन अदर जोन्स एज वेल. सो जब भी अगर आप इंडिया से यूएस हिट करोगे तो इंडिया से आप किसी पेज को एक्सेस करोगे, वो यूएस हिट नहीं करेगा, यूएस के सर्वर पे हिट नहीं करेगा, वो आपके इंडिया में जो जोन अवेलेबल है जहां पर दे पुट देयर सर्वर, वो वहां से हिट करेगा. In same case of UAE, if I'm trying to hit any you can say API, or if I'm trying to access any web page, then it will it will send request from UAE server. Okay, so this is serving content from a location closer to the user. तो मेरी लोकेशन से जितना क्लोजर सर्वर है वहां से वो मेरे को डेटा लाके देगा. So basically it happens in HTML, CSS or JS, or you can say object storage devices. Okay, like object storage content, which includes your static files, your photos, videos, all those stuff. इसका like example in AWS we have the CloudFront. We generally use CloudFront. Now, serving content from CDNs are improve the performance. User receive content from the data center closer to them. Definitely अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल डेटा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ की जो नियरेस्ट लोकेशन पे सर्वर है वहां से हम डेटा फेच कर सकते हैं. सर्वर डू नॉट सर्व रिक्वेस्ट दैट द CDN, your server do not have to serve request that the CDN fulfills. For example, yeah, this is very important. For example, CDN में एक पूरी वेबसाइट कैश हो रखी है. ओके, नाउ CDN है आपकी इंडिया लोकेशन में, लाइक सर्वर आपकी इंडिया लोकेशन में जिसमें आपकी वेबसाइट कैश है. द मेन वेबसाइट इज डिप्लॉयड ऑन यूएस सर्वर. नाउ यूएस सर्वर गोस डाउन, यू कैन से. इसका इट डजंट मीन कि आपका आप उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज यूएस सर्वर डाउन है, बट आपका पेज कैश हो रखा है इंडिया सर्वर में, डेटा कैश हो रखा है इंडिया सर्वर में. Still you are able to access that particular data. So this is very important in terms of CDN. Now, scaling. So this is the first step while working on, you can say, distributed system. Like people are mostly use these two terms, horizontal scaling and vertical scaling, or you can say scaling basically. So let's read the definition. Scaling, process of expanding resources and performance with increased load traffic on the system. Now, let's take an example, same example, food delivery. So मेरे पास एक एप्लीकेशन था, मेरे पास स्टार्टअप का आइडिया आया फूड डिलीवरी का, मैंने एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया. अब मैंने उसका MVP निकाला सबसे पहले. सो 10 कस्टमर्स आए, 20, 30, 50. Now I got the funding and application start growing. What's next? अब initial phase में I launched the MVP. So I launched with a very minimal resources. You can say 5 or 6 or 8 GB of RAM or 8 GB of memory and 2 core CPU. That's it. Okay. Guys, am I audible now? Is something happened? Yeah, okay. Okay. Now I got the funding and users are start coming onto my application. You can say 1,000, 100,000 and million users. But I was using only 2 core CPU and 6 or 8 GB RAM or memory. Does the application would survive? Definitely not. So while increasing the load and traffic, we also need to expand our resources as well. So there are two terms, horizontal scaling and vertical scaling. So how should I scale my server? Basically, should I increase the number of CPUs? I'll make it from 2 to 10, 20, 30 CPUs. RAM 8 GB, 16, 64, 128 GB. So basically, I'm expanding the, or you can say increasing the resources of the same server. But what happened? That particular one server down, whole application would crash. Okay, so in vertical scaling,
increase more resources to an existing system. Same system में resource increase करना. Okay. Now there is another term, horizontal scaling. Now what would I decide? I don't want my whole application would die because of that particular one server. What should I do? I'll create replicas of one server. For example, in an ideal scenario मैंने calculate कर लिया कि मेरा एक server में around 8 CPU होने चाहिए and 8 core CPU and 128 GB RAM. Now I created similar servers, like you can say 4 similar servers of same configuration. अब मेरे पास 4 सर्वर हैं. अब रिक्वेस्ट आ रही है, वो चारों में डिवाइड हो रही है बेसिकली. ओके, अगर एक सर्वर डाउन होता है, इट डजंट मैटर, 3 सर्वर है, एप्लीकेशन वुड सर्वाइव, बट थोड़ा सा लेटेंसी आ जाएगा क्योंकि एक सर्वर डाउन हो चुका है जो लोड को हैंडल कर रहा था. ओके, नाउ let's understand this from a very basic diagram. So initially there is a very few resources are configured. Whenever the traffic or load grows, in vertical scaling I increase the resources on a same server, but in horizontal scaling I increase the number of servers, so request can divide in those servers. Okay, now let's jump to the another part, load balancer. So before understanding the load balancer, there is a question here. For example, user is trying to hit my application and I'm saying I have 6 servers. Now on which server user will hit, like कौन बताएगा मेरे को? ओके, और ये कैसे पता चलेगा कि यार ये सर्वर डाउन है, यहाँ पर रिक्वेस्ट मत भेजो? All those stuff done by load balancer. Okay, let's read the definition first. Distribute load or traffic from clients to a set of servers. Means load को distribute करना. I have 6 servers, thousands of requests are hitting. Load balancer distribute those requests in multiple servers. Okay, first part. Load balancers acts as a reverse proxy. So basically reverse proxy is something in front of your server there is someone else is sitting. तो लोड बैलेंसर इज द वन जो आपके सर्वर के सेट ऑफ सर्वर के सामने बैठा हुआ है, उसके बाद रिक्वेस्ट आ रही है, उसको दिख रहा है यार मेरे को डिवाइड करना है, उसने डिवाइड करके सारे सर्वर पर सेंड कर दी, तो बेसिकली लोड को डिवाइड कर दिया. ठीक है, वर्चुअल आईपी एड्रेस बेसिकली सर्वर की ओन आईपी होती है, तो लोड बैलेंसर की खुद की आईपी होती है. सो इफ ए क्लाइंट इज कनेक्टिंग तो सर्वर की आईपी के बजाय क्लाइंट विल कनेक्ट फ्रॉम द लोड बैलेंसर आईपी, बिकॉज क्लाइंट नॉट हिट these servers in a loop कि मेरे पास 6 सर्वर है तो मैं 6 सर्वर की आईपी लिस्ट करके लूप में हिट करता हूँ. नो, क्लाइंट विल हिट ओनली द लोड बैलेंसर सिंगल आईपी. लोड बैलेंसर विल डिवाइड और यू कैन से distribute the load. Okay, now why we use load balancer? Because of improved performance, because if load is divided then our performance is definitely improving. Prevent downtime, as I mentioned earlier, if these 2 servers goes die, doesn't matter, we have these 4 servers alive, application would run. Better resource utilization. Here I'm increasing my resources, like ठीक है काम नहीं कर रहा और बढ़ा दो, but here I actually benchmark my resources and provide only required resources. And guys, make sure while designing the system always consider the cost, because अगर मैंने सर्वर बना दिया 1 मिलियन यूजर्स के लिए बट मेरे पास यूजर्स आ रहे हैं 10, then cost would like very high. So cost is one of the key factor we should consider while creating the system design or system architecture. Increase scalability. So obviously like whenever my system you can say gets the number of traffic or load is increasing, these server will you can say grow, or you can say the count will increase automatically. There is a term auto scaling. अगर मैंने लगा रखा है कि 6 सर्वर पर ये 6 सर्वर विल यू कैन से टेक लोड ऑफ अराउंड 1 मिलियन रिक्वेस्ट, बट व्हाट आफ्टर 1 मिलियन, 1 मिलियन से रिक्वेस्ट आने लगेंगी, तो बाय यूजिंग ऑटो स्केलिंग इट विल क्रिएट अनदर 2 सर्वर्स एज पर द कॉन्फ़िगरेशन. तो अब 6 की बजाय 8 सर्वर हो गए मेरे. ओके, तो दिस इज अ वेरी बेसिक आर्किटेक्चर. यू कैन सी client directly hits to the load balancer. Now load balancer will divide or you can say distribute the traffic between servers. So here's a question.
हाउ लोड बैलेंसर वुड चेक कि यार कौन से सर्वर पे हिट करना है. So basically there are some strategies load balancer like on rely random. Sometimes it choose random, but this should not be the case. This is just a term, no one use this. राउंड रॉबिन इज सिंपली पहले स्प्लिट करेंगे फिर इस पे. सो बेसिकली वन बाय वन ऑन द ऑल द सर्वर्स. Then least busy. So there is a least busy strategy. For example, there are 100 requests are coming. Load balancer send 30 here, 70 like 60 here. Now another 10 request. Here's here यहाँ पर 70 request चल रही हैं, यहाँ पर 40 request process हो रही हैं. अच्छा ये खाली पड़ा है, इसको भेज देता हूँ. So this is least busy one. By some request parameter and sticky session, sometimes client send some parameters, so on the basis of that load balancer decide I need to send request on these particular servers. Okay, now there is one more thing. How load balancer would know I have this set of servers? So अगर मैंने सर्वर क्रिएट किए हैं, then those server will registered in load balancer as a target group, or you can say target IP. और हाउ लोड बैलेंसर वुड नो कि ये सर्वर मेरे रनिंग है या नहीं है, हेल्दी है या नहीं है. सो बेसिकली लोड बैलेंसर कंटिन्यूअसली हिट यू कैन से रिक्वेस्ट ऑन दीज सर्वर आईपी. तो बेसिकली इट्स अ हेल्थ चेक. अगर मेरे को किसी सर्वर की हेल्थ चेक, मतलब किसी सर्वर को चेक करना है कि वर्किंग है नहीं, अप है नहीं, सिंपली उसकी हेल्थ चेक कर लो. हेल्थ चेक करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं. फॉर एग्जांपल जस्ट पिंग टेलनेट समथिंग, और अगर कोई एप्लीकेशन है तो जस्ट क्रिएट अ हेल्थ एंड पॉइंट. ओके, so within a certain interval, for example 1 second, 2 second, it continuously hit the endpoint or check its health. Now just a second. Here comes monolithic versus microservice architecture. I think any one of you is asking monolithic or some question regarding microservice. I'm not sure who's the one. Can you please ask? Hello. Okay, so I'll continue. Guys, are you there or सब चले तो नहीं गए कहीं? ठीक है. Let me know if I'm getting a little bit fast or slow. It's just basically a session, like normal informal session you can say. Okay, so monolithic versus microservices. So let's get back to the around 6 to 7 or 10 years back. So हमारे पास क्या होता है कि we have client or UI, then we have backend. Just take a very simple example of you can say shopping website. In shopping we have multiple features like cart, payment, then user, and we have inventory. Okay, then we have the database. Okay, so client or UI, these features, the business logic, and the database, which store all the data, you can say in a single database: user data, inventory data, payment data, and user cart data, all the stuff. Now what happened in monolithic architecture? मोनोलिथिक में ये सारी चीजें सिंगल सर्वर पे होती हैं. बेसिकली आई हैव वन EC2 सर्वर और वन वर्चुअल मशीन. आई होस्टेड UI on a different port, I hosted my server on a different port, and database on a different port. अब सब कुछ एक ही तरह से चल रहा है. ओके, देख सारे फीचर्स शॉपिंग कार्ट के सारे फीचर्स एक ही कोड बेस में हैं. ओके, सो एज पर द डेफिनेशन, in monolithic architecture all the components and function of an application are tightly integrated into a single unified code base. एक ही कोड से सब कुछ चल रहा है and executed as a single unit. Okay, now अब let's say शॉपिंग कार्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? सर्च होता है. ओके, आई एम सर्चिंग continuously for my application, like for say I want to buy a jeans, so I'm continuously searching for a jeans. Okay, but सर्च खरीदूंगा मैं एक ही. ओके, मींस पेमेंट का जो API है वो मेरी एक ही बार यूज हुई, बट जो मेरी सर्च API है वो मैंने कम से कम 1000 बार यूज कर लिया. ओके, इट मींस मेरा सर्च शुड बी स्केलेबल और फास्टर एज कंपेयर टू पेमेंट. बट यहाँ पर तो सब कुछ कपल्ड है. अगर मैं एप्लीकेशन को स्केल करूंगा तो पूरा एप्लीकेशन स्केल हो जाएगा.
अब पेमेंट पे तो हिट जा ही नहीं रहे हैं, देन व्हाट शुड आई डू? ओके, बंडल टुगेदर, सारे पार्ट्स एक साथ कपल्ड होते हैं. This would create some issues whenever your application grows. For example, coupling, like multiple features are coupled with each other, then it is hard to divide, or you can say provide separate resources to those. Because अगर search को मेरे को faster बनाना है, because search is something people use everywhere in a shopping, or you can say in Amazon, Flipkart, everywhere. It should be faster or scalable instead of पेमेंट शुड बी फास्टर, बिकॉज पेमेंट अगर एक बार फेल हुई तो मेन तो पैसा वहीं से आ रहा है, बट सर्च भी फास्टर होना चाहिए. ओके, दिस प्रॉब्लम रिजॉल्व इन माइक्रो सर्विसेज. बेसिकली व्हाट वी डिड इन माइक्रो सर्विस, वी क्रिएट पर्टिकुलर सर्विस फॉर दैट पर्टिकुलर फीचर. yes, payment is a service. I'll create a separate code base for payment, and I will deploy it as on a separate server. Now I can scale payment as I want. I can scale search as I want. I can scale inventory as I want. Okay, और डेटाबेस भी मेरा अलग सर्वर पे है, और मैंने डेटाबेस को भी स्प्लिट कर दिया. नाउ हाउ दीज सर्विसेज विल इंटरेक्ट. फॉर एग्जांपल, मैंने सर्च सर्विस से सर्चिंग कर ली. नाउ मेरे को मेरी जीन्स पसंद आ गई. नाउ आई वांट टू ऐड इनटू द कार्ट. मैंने कार्ट में ऐड कर लिया, बट वो जीन्स अवेलेबल है नहीं है. वो कैसे पता चलेगा? इन्वेंट्री से. नाउ API will hit to the inventory microservice. It's another service via API. Okay, it will check in the inventory database and check if inventory is available. It will return the response. Okay, now I added to the back cart. Now अब मेरे को क्या करना है कि परचेज करना है, पेमेंट करना है. Now my service again interact with the payment. तो वो पेमेंट की सर्विस से इंटरेक्ट करेगी वाया सम API कॉल्स. ठीक है, देर आर मतलब और भी मेथड्स हैं ये कॉल्स करने के. विल डिस्कस लेटर. इट्स बेसिकली थोड़ा एडवांस हो जाएगा, विल डिस्कस लेटर, बट बहुत बेसिक से चलते हैं. ठीक है, अब सारी सर्विसेज अलग परफॉर्म कर रही है, सबके डेटाबेस अलग है, सब कुछ डीकपल है. आई कैन डू व्हाटएवर विद माय ओन सर्विस. फॉर एग्जांपल, पेमेंट को मेरे को फास्ट यूज करना है, उसमें मेरे को कॉन्करेंसी चाहिए. आई विल यूज गोलैंग. मेरे को ठीक है, मैं पेमेंट वाली सर्विस को गोलैंग से बना सकता हूँ, बट मेरी सर्चिंग वाली सर्विस को मैं पाइथन से बनाऊंगा, एंड आई विल क्रिएट इन्वेंटरी सर्विस फ्रॉम माय जावा. ठीक है, I can do, because both are decoupled. They are not coupled with each other. They are not bounded. Okay. Simple example: in a monolithic client, payment, shopping, inventory, everything is on a single instance. But in a microservice, it's a client. There is a separate UI microservice, separate payment service, separate shopping cart, separate inventory, and they are interacting with each other via some API calls. There are more methods. So there is a one method I didn't mention in the slides, but I will tell you. There is a concept of API gateway. Now what API gateway does, I'll create some figure here. For example, this is my client. Okay, and these are some servers, some services. For let's say same example लेते हैं वही वाला. ये 4 सर्विस है, मेरे 3 ही रखते हैं इसको. 4 सर्विस है: इन्वेंट्री, पेमेंट, and then another one is inventory, payment, and shipping. Okay, now अब client is interacting with these 3 services, you can say, but okay, but internally ये सर्विस भी आपस में इंटरेक्ट कर रही है. So I'll create this. So basically it's a two, like both the arrow ways, both arrow should be in both ways, but I think you guys can understand. Let me remove this. Okay, क्या so इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर है. बट अब ये आई वांट कि कोई अनऑथराइज पर्सन ना आ जाए मेरी इन्वेंटरी सर्विस में. आई वांट कि मेरी सर्विस में कोई पेमेंट वाली में अनऑथराइज ना आ जाए, या फिर कोई इसको थ्रॉटल ना कर दे. मतलब इसको थ्रॉटल ना कर दे, मतलब रेट लिमिट सेट होनी चाहिए. लेट्स से अगर किसी ने डीडोस अटैक किया, मल्टीपल मिलियंस रिक्वेस्ट हिट कर दिए, तो डाउन हो जाएगी. ओके, सो आपस में इंटरेक्ट करने के लिए दे नीड टू ऑथराइज बाय सम यूएम सर्विस. सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सर्विस है यूजर एक्सेस एंड मैनेजमेंट. यहाँ से पूरा यूजर का लॉगिन एक्सेस होता है. नाउ हर सर्विस को चाहिए कि यार यूजर लेजिटिमेट होना चाहिए.
ठीक है, ऑथराइज होना चाहिए। तो जब भी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री को पेमेंट से हिट करना है, पेमेंट क्या करेगा, पेमेंट यूजर एक्सेस पर हिट करेगा, वो चेक करेगा अगर एक्सेस है तो उसके बाद वो यहाँ पर हिट करेगा, मतलब एक्सेस कर पाएगा। अब सेम केस, बट अगर फॉर एग्जांपल एक सिंपल बिजनेस लॉजिक के लिए इन तीनों सर्विस में से डेटा निकालना है, सो इज इट अ गुड अप्रोच कि मैं सारी सर्विस पे ऑथराइजेशन करूं? डेफिनेटली नॉट। ओके, और तीसरा पार्ट पेज इन वो रेट लिमिटिंग का। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डीडोस अटैक किया, देन हु विल प्रिवेंट? सो बेसिकली सेम चीज मेरे को यहीं पे लिखनी पड़ेगी इफ आई वांट टू लॉग द रिक्वेस्ट रिस्पांस। सो द आई थिंक मिडलवेयर सबने सुना होगा, तो मिडलवेयर वाला कंसेप्ट मेरे को हर जगह पे लिखना पड़ेगा। And there are a lot more things which is very common. So there is a one more term which is API gateway. So I just remove all these things, I just copy this, I put API gateway here. Okay, now what API gateway does, client will interact with API gateway, basically request आएगी client के पास, मतलब API gateway के पास, then API gateway will decide कि मेरे को रिक्वेस्ट आगे कहाँ फॉरवर्ड करनी है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज रिक्वेस्ट कम फॉर सर्च और शिपिंग, देन API गेटवे वुड नो कि यार ये शिपिंग की रिक्वेस्ट है, देन API गेटवे विल check if this particular is authorized or not. So instead of authorization in multiple internal microservices, API gateway यहीं पे authorize कर लेगा कि यार ये यूजर legitimate है, मैंने इसको चेक कर लिया, this user is authorized, अब एक काम करो इसमें से किसी को भी एक्सेस करा दो। नाउ शिपिंग वाली पे इसको रिडायरेक्ट कर देगा। सो बेसिकली इट्स देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज सर्विस डिस्कवरी। फॉर एग्जांपल कि मेरे को शिपिंग करनी है, मैंने स्लैश शिपिंग एपीआई करा, इट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल, देयर आर लॉट मोर पैटर्न्स। नाउ एपीआई गेटवे शुड नो क्या मेरे को शिपिंग वाली माइक्रो सर्विस पे इसको रिडायरेक्ट करना है। Okay, so there are multiple logics should be we can implement like rate limiting and throttling to prevent DDoS attack, log like exception handling or logging, and to log the request and response. Everything we can implement in API gateway, which is which we should not implement in this because Sasara like duplicacy. There is a duplicacy of writing the code. For example, पहले पूरा मोनोलिथिक कोड था, आई हैव सम 6 to 7 मिडलवेयर्स, अब मैंने इन्वेंटरी सेपरेट कर दिया। नाउ आई वांट टू यूज गो कॉन्करेंसी में गोलैंग की कॉन्करेंसी यूज करनी है। अब मैं सेम कोड को गोलैंग में लिखूंगा, देन सेम मिडलवेयर इन सबको पाइथन में, देन इसको, देन व्हाट्स द पॉइंट? वी शुड लेवरेज दिस एपीआई गेटवे एंड देन यूटिलाइज और यू कैन से communicate these services internally. Okay, so guys, any doubt up to here, please let me know. Yeah, so there's if we are using APIs, then Yeah. is the API visible like when we do F12 करके जो inspect element करते हैं वहाँ API हाँ। visible है अगर? नहीं, मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि एपीआई अगर आप एपीआई गेटवे यूज नहीं करोगे ना, तब भी एपीआई आपको नहीं दिखेगी। बिकॉज क्या होता है कि मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लाइंट है, अगर बहुत ही सिंपल वेबसाइट बना रखी है, फॉर एग्जांपल index.html, और हम हिट कर रहे हैं स्लैश यूजर वाली, और आप डायरेक्टली नेटवर्क टैब में हिट करते हुए दिखा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो वो आपको दिख जाएगी। बट फॉर अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव यू कैन से, और फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, और यू कैन से व्हेनेवर द प्रोडक्ट स्केल, जब प्रोडक्ट बड़ा हो जाता है तो डायरेक्टली क्लाइंट के पास, जब कुछ क्लाइंट किसी फॉर एग्जांपल किसी डेटा को पोस्ट करता है, तो वो डेटा को डायरेक्ट यहाँ पर नहीं भेजते। ओके, सो client have their own server. So basically if I talk about my organization, we have server for front end which is we generally call engine. So front end का खुद का एक इंजन बना हुआ है जिसमें डेटा आता है, इंजन पे उस डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो भी कॉमन कोड लिखा हुआ है, या फिर हमें उस डेटा को उस डेटा से या फिर सर्वर को स्केलेबल तरीके से हैंडल करना है। उसके बाद वो इंटरनल सर्वर हिट करता है आपके बैकएंड सर्विसेज को। ओके, सो ये पर्टिकुलर सर्वर क्या हो गया, ये एक तरह से प्रॉक्सी की तरह काम करेगा। सो एज आई मेंशन रिवर्स प्रॉक्सी, हमारे पास दो तरह की प्रॉक्सी होती हैं। लेट मी चेक शो यू। ओके, दिस इज लाइक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये आई जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस एंड आई मूव हियर। ओके, ये मल्टीपल सर्विसेज है। सो अब एक क्लाइंट है, क्लाइंट को मैं बोलूंगा कि यार एक काम करो, इसको ना एक्सेस कर लो ऐसे डायरेक्ट यहाँ से।
ठीक है। अब क्लाइंट डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है, या मतलब कोई पॉइंट नहीं है ना, बिकॉज क्लाइंट डोंट नो कि यार किसको एक्सेस करना है, क्या करना है। क्लाइंट को पता भी होगा तो नीड टू रजिस्टर ऑल दोज सर्विसेज कि यार मेरे को इन्वेंट्री पे हिट करना है, सो मैं इन्वेंट्री का रजिस्टर कर लेता हूँ, लाइक स्लैश इन्वेंट्री स्लैश समथिंग। सो व्हाट वी डज, हम यहाँ पर एक प्रॉक्सी लगा देते हैं, सिंपल। तो आपने एनजीनिक्स वगैरह सुना होगा, एनजीनिक्स। हाँ हाँ, लोड बैलेंसर्स वगैरह करेक्ट। तो लोड बैलेंस, जो लोड बैलेंसर हमने यहाँ पर बनाया था, दिस वन, लोड बैलेंसर विल आल्सो एक्ट एज अ प्रॉक्सी। It's a reverse proxy because it sits before server, or it's a part of a you can say backend, or you can say application servers, not for a client. Okay, client will hit this proxy, इस proxy में इन सब का नेम स्पेस और you can say सारी लोकेशन एडेड है, then they will hit here. Okay. Okay, yeah. So it's a reverse proxy. Now if I talk about the forward proxy, in forward proxy, हाँ एक चीज और, रिवर्स प्रॉक्सी में क्लाइंट को लोड बैलेंसर की आईपी पता है, क्लाइंट को इनकी आईपी नहीं पता कि इनकी आईपी क्या है। ओके, एंड लोड बैलेंसर को एक्चुअल क्लाइंट का एड्रेस पता है कि मेरे पास ये रिक्वेस्ट इस क्लाइंट से आई है। ओके Okay. और इफ आई टॉक अबाउट द फॉरवर्ड प्रॉक्सी, इन फॉरवर्ड प्रॉक्सी दिस पर्टिकुलर थिंग will attach with client here. Client will connect with the this forward proxy. Now this forward proxy will send request to the servers. So this is also a part of client now. Now server knows, चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर लोड बैलेंसर भी लगा दिया, मैंने रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों यूज कर लिया। यहाँ पर ये हो गया, इसको आई जस्ट रिमूव दिस, ये हो गया रिवर्स। ओके, नाउ अब इसको भी नहीं पता होगा कि क्लाइंट का क्या आईपी है, और फॉरवर्ड को भी नहीं, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड को भी नहीं पता होगा कि इन सर्वर्स का क्या आईपी है। तो बेसिकली यहाँ पर बोथ इंप्लीमेंट है, पूरा एब्स्ट्रैक्शन है। Okay, so basically we have do these two, forward and reverse proxy. So forward proxy generally used for client side, and reverse proxy generally used for like you can say server side. ओके, नो, सो वही मेरा डाउट था कि अगर एपीआई विजिबल है तो कोई भी तो हाँ, पोस्ट या गेट रिक्वेस्ट करके एपीआई को एक्सप्लॉइट कर सकता है। exactly. This is what I told you here. हाँ। In API gateway कि हम्म सो यहाँ पर क्या होता है, ये मेरा एपीआई गेटवे लगा हुआ था, फॉर एग्जांपल जो आप बता रहे हो उसको हिट करके, बेसिकली इट्स अ डीडॉस अटैक कि मल्टीपल पोर्ट पे मल्टीपल हिट कर रहे हैं, इट्स अ डीडॉस अटैक। हमें वी नीड टू प्रिवेंट दिस, बेसिकली वी नीड टू ऐड सम काइंड ऑफ रेट लिमिटिंग कि अगर एक सेकंड में किसी ने 100 रिक्वेस्ट मारी तो उससे ज्यादा नहीं मार सकता। ओके, दिस इज रेट लिमिटिंग, और टू अवॉइड थ्रॉटलिंग कि यार एकदम से कोई डेटा, मतलब हमारे सर्वर को इतना थ्रॉटल ना कर दे। वी हैव सम लॉजिक बिहाइंड दिस, और वो किसी ना किसी यू कैन से कि बिजनेस यूज केस के ऊपर है कि यार अगर किसी ने 100 रिक्वेस्ट करी है, मतलब मेरा यूज केस ऐसा है कि कोई एक साथ 100 रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों कर रही दूं किसी को, मतलब ऐसा केस ही नहीं आना चाहिए। ओके, अब मेरे एक 3 सर्विस है, सपोज करो कि ये सर्विस गलती से पब्लिक हो भी गई, किसी ने इन पे हिट कर दिया, तो द पॉइंट इज कि इनको कभी पब्लिक करना ही नहीं है, और इनको सीधा सिंपल एक्सेस करो एपीआई गेटवे से हियर। ओके। तो एपीआई गेटवे इज समथिंग, एक ऐसी सर्विस है जो इन सबको चेक कर रही है, इन सबको मैनेज कर रही है कि यार यहाँ पे कुछ भी डेटा आएगा, आई एम द वन, मैं तुम्हारे पास रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा। सिंपल, ये कुछ भी डीडोस अटैक होता है, आई विल हैंडल दिस। अगर कोई भी ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन करनी है, आई विल हैंडल दिस। तुम क्या करो, तुम बस अपना बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करो, एनीथिंग एल्स आई वुड डू। दिस इज सिंपल एपीआई गेटवे एंड these servers are doing. Okay. Oh, yeah, got it. Yeah. I hope this answers your question. Yes. Okay, cool. Yeah, so it's about monolithic and microservices. Now let's talk about the caching part. Just a second, guys. So just focus on the first line. Strongly frequent access data in a temporary storage location. Now, for example, I'm a frequent search. I do frequent search on
शॉपिंग वेबसाइट, ठीक है। अब मेरे एंड से डेली जीन्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि यार मेरे को जीन्स देखनी है, बट मैं 5 दिन से ले नहीं पा रहा। तो मैं डेली देख रहा हूँ उस जीन्स को कि प्राइस मतलब क्या है क्या नहीं है, उसका जो कंटेंट है क्या है क्या नहीं है, मतलब डेली देख रहा हूँ मैं। सो बेसिकली आई एम डूइंग सम फ्रीक्वेंट सर्च। ओके, नाउ बैकएंड में क्या हो रहा है कि बैकएंड में जैसे ही मैं सर्च करता हूँ वो डेटा लेके आते हैं डीबी से। मैंने फिर से जीन्स सर्च करा, वो डेटा फिर से डीबी से लेके आ रहे हैं। जब whenever they know कि यार दिस पर्सन इज डूइंग सम फ्रीक्वेंटली सर्च, एक काम करते हैं इसका ना डेटा इसी के पास रख देते हैं, ठीक है। सो इन कैश इन और यू कैन से इन कैश और इन कैशिंग we can put frequently searched data in a temporary storage, and that particular temporary storage is RAM, or you can say in memory, because local accessing local disk is you can say time taking task instead of the memory. That's why we can say memory in memory is very efficient, or Redis आपने सुना होगा, Redis is very efficient. Okay, or the location where we put the data is cache. This cache can be quickly accessed when needed. हमें जब भी चाहिए होता है हम उसको डेटा निकाल सकते हैं, बिकॉज यार जहाँ पर सर्वर होस्टेड है या फिर किसी हम कैश को उस सेम सर्वर पे तो क्या नहीं रखना चाहिए, बेसिकली हम छोटे एप्लीकेशन के लिए हम रख सकते हैं। सो डीबी सर्वर जो बना हुआ है हमने वहां पर रख दिया, तो हमें स्टोरेज पे क्वेरी नहीं करनी, हमने सर्वर से डेटा उठा लिया, सिंपल, तो विच इज फास्टर। ओके, और फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस सर्वर कहीं दूर रखा हुआ है, मतलब डिफरेंट रीजन में है, दैट्स आल्सो यू कैन से एक्सपेंसिव कॉल। Okay, now let's understand some key concept of caching. Here cache means caching is a process and cache is a storage, मतलब temporary storage location. Now cache high speed storage location CPU than the original data source. So basically as I mentioned, the CPU or in memory, it's a high speed. We can fetch the data within a milliseconds from the cache. It's a, or not even a 2 digits, it's a single digit, you can say 5 milliseconds, 6 milliseconds. और ओरिजिनल डेटा सोर्स में रखा है वहां से आ रहा है 20 सेकंड में, विच इज एक्सपेंसिव। अनदर टू थिंग्स, कैश हिट एंड कैश मिस। इन कैश हिट, when a requested piece of data is found in the cache, it a cache hit. Now मैंने डेटा हिट करा, अब मेरे को जो डेटा चाहिए था वो डेटा मिला नहीं मेरे को, नाउ व्हाट शुड आई डू, मैं उसको खाली रिटर्न तो रिस्पॉन्स करूंगा नहीं, बिकॉज सोर्स ऑफ द ट्रूथ तो डेटाबेस ही है ना, वहां तो डेटा पड़ा है। तो रिक्वेस्ट पहले कैश में देखेगी, कैश में डेटा नहीं मिलेगा तो वो डेटाबेस से निकाल के यूजर को देगी, ठीक है। बट अब कैश मैंने बनाया है तो मेरे को उसको यूज तो करना है, अब डेटा ही नहीं है तो व्हाट शुड आई डू। सो हियर कम्स कैश अपडेट पार्ट। जैसे ही रिक्वेस्ट हिट हुई, कैश में डेटा देखा, कैश में उसको डेटा नहीं मिला, रिक्वेस्ट गोज टू द डेटाबेस, उसने डेटाबेस से डेटा निकाला, उसने फिर उस डेटा को कैश में डाल दिया और उसके बाद यूजर को सर्व करा। अब डेटा को कैश में डालना और उसके बाद यूजर को सर्व करना, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली। डेटाबेस से डेटा निकाला, उसको कैश में डाला, यहाँ पर एक कुछ टाइम लगा, कैश से निकालने कैश में डालने के बाद यूजर को दिया, यहाँ पर कुछ टाइम लगा। बट एक काम सीधा भी हो सकता था कि डेटा निकाल के सीधा यूजर को दे दिया, लेकिन हमें तो कैश में डेटा डालना है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूजर कैश में डाले तो उसको मिल जाए। तो इसको भी थोड़ा लेटेस्ट स्लाइड 2 स्लाइड बाद देखते हैं कि ये क्या प्रोसेस है। सो कैश हिट में अगर डेटा नहीं मिला तो इट्स अ कैश हिट, सॉरी यार गाइस, आई जस्ट कंफ्यूज, कैश विच इज कैश मिस अगर डेटा नहीं मिला तो, और अगर डेटा मिल जाता है तो कैश हिट। ओके, या सॉरी, इट्स द टर्म गॉट स्वैप। So caching, like we can implement caching in multiple ways. So it's a client caching, like client caches can be located on multiple, you can say, browser or OS. So basically it's a kind of where we store our tokens in a cookies or some local storage. For example, अगर किसी यूजर का डेटा हमने लोकल स्टोरेज में रखा है, so ब्राउजर और फ्रंट एंड फ्रीक्वेंटली एक्सेस, उसको बार बार एपीआई कॉल नहीं करनी। CDN कैशिंग, ये भी रिसेंटली हमने देखा था कि आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज को नियरेस्ट लोकेशन और जोन में डेटा को कैश करके रखना। डेटाबेस कैशिंग, so some databases are also provide some internal cache. We do not need to implement explicitly, we need to enable or disable those. Application caching, so basically it's a in memory caching. For example, एपीआई से एक रिस्पॉन्स आया, मैं यूजर की प्रोफाइल एपीआई से बार बार मंगवा रहा हूँ, सो इंस्टीट्यूट ऑफ बार बार मंगवाने की बजाय मैंने यूजर के डेटा को कैश में रख दिया, क्योंकि वो अपडेट हो ही नहीं रहा फ्रीक्वेंटली। एक यूजर अपना डेटा अपडेट करता है एक 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो व्हाई शुड आई लाइक फैच डेटा फ्रॉम डेटाबेस फ्रॉम एवरी टाइम, आई सिंपली पुट इन कैश, और डेटा वहां से फैच हो रहा है। सो बेसिकली वी यूज इन मेमोरीज रैम, और यू कैन से
we put data in a RAM, which is in memory, and the data structure we use for this is Redis. Mostly we have another type which is main cache, but I didn't use, so I preferably not much aware about that. But yeah, I used Redis frequently, because Redis provides a lot of data structure to deal with data. फॉर एग्जाम्पल आपने लिस्ट में रख दिया, आपने डिक्शनरी में रख दिया, की वैल्यू पेयर में स्ट्रिंग में रख दिया. सो देयर आर लॉट्स ऑफ, यू कैन से, feasibility in Redis. Okay, so very simple pictorial representation. This is my client. एप्लीकेशन सर्वर पे हिट किया, मैं गया यहाँ पे, कैश में डेटा देखा, डेटा कैश में मिलेगा, रिटर्न कर देगा, वापस रिस्पॉन्स कर देगा, डेटाबेस तक जाने की जरूरत ही नहीं है. बट कैश में नहीं मिला, देन एप्लीकेशन सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास, डेटाबेस से डेटा उठा के लाएगा, कैश में डालेगा, फिर क्लाइंट को रिटर्न कर देगा. So basically it's a whole process of doing caching. Okay, now it's a major, you can say, sometimes need to understand कि यार हमें कैश कब अपडेट करना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल दिया था कि क्लाइंट ने सर्वर पर रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने देखा कैश में डेटा है ही नहीं. ओके, नाउ सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास, उसने डेटाबेस से एक्चुअल डेटा को निकाला. नाउ in an ideal scenario, क्या सेम टाइम पे ही उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कैश में डेटा अपडेट करना चाहिए, उसके बाद क्लाइंट को रिस्पॉन्स रिटर्न करना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो क्लाइंट के रिस्पॉन्स में डिले होगा, विच इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस. जो रिस्पॉन्स सिंपल यहाँ से निकाल के हाफ अ सेकंड में हो सकता था, उसको डिले होके, हाफ अ सेकंड मींस 500 मिली सेकंड में हो सकता था, वो डिले होके 800 मिली सेकंड हो गया, बेसिकली 300 मिली सेकंड एक्सपेंसिव. ओके, अब बट इसको ये अपडेट कैसे करेगा फिर? ओके, सो देयर आर 4 ways वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन टू अपडेट द कैश. सबसे पहले कैश असाइड. सो आई हैव डायग्राम्स फॉर दिस, बट एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूं. द एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम स्टोरेज. द कैश डज नॉट इंटरेक्ट विद द स्टोरेज डायरेक्टली. इसको देखते हैं एक बार. So this is my cache aside. यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लाइंट कुछ भी लाइक डेटा उसको फैच होता है, सबसे पहले जाके कैश में अपडेट होता है. जस्ट रीड दिस. एप्लीकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम स्टोरेज. द कैश डज नॉट इंटरेक्ट विद स्टोरेज डायरेक्टली. यहाँ पे डेटाबेस से कुछ नहीं हो रहा. जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट इज अपडेटिंग डेटा इन कैश. ओके, here not client, basically I'm just taking this, all these are servers because यहाँ पर client का कोई काम नहीं है. Okay, another one is write through. The application uses the cache as a main data store, reading writing to it, while the cache is responsible for reading writing to the database. Here application ने cache पे hit किया. Now cache देखेगा यहाँ पे कि अगर इसमें डेटा नहीं है तो ये डेटाबेस पर कॉल करेगा. तो बेसिकली कैशिंग, मेरे पास एक अलग सर्विस है यहाँ पर, और लॉजिक सिंपल कैशिंग सर्विस में इंप्लीमेंटेड होगा कि अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं डेटा निकाल के लाऊंगा स्टोरेज से, उसके बाद मैं सर्वर को रिटर्न करूंगा और अपने पास कैश करूंगा. इट्स अ राइट थ्रू बेसिकली. ओके, देन वी हैव राइट बिहाइंड. द एप्लीकेशन डज द फॉलोइंग: add update entry in cache, asynchronously write entry in data store to improve performance. Now here request हुई, data I think yes, हाँ ठीक है. So storage में data है, but just a second guys, I think I just swap these. Yeah, so request है, I think arrow थोड़ा उल्टा बन गया, हाँ sorry my bad. So request हुई, डेटा कैश में आया, ठीक है. अब कैश में डेटा आने के बाद असिंक्रोनसली अपडेट हुआ स्टोरेज में. ओके, मतलब दिस इज वेरी 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 फास्टर, क्योंकि रिक्वेस्ट, जैसे ही रिक्वेस्ट आई उसने डेटा बस कैश में ही अपडेट करा, उसने डेटाबेस पे कॉल ही नहीं करी. ओके, अपडेट करते ही रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया. दिस इज ड्रास्टिकली फास्टर, यू कैन से वेरी, मतलब वेरी फास्टर. Now, but data update कैसे होगा? There is a mechanism of asynchronism. I will tell you later in another slide. So, return is response return करने के बाद
कैश ने असिंक्रोनसली डेटा अपडेट किया डीबी में, विच मीन्स डेटा इज नाउ प्रेजेंट एंड रिटर्न फास्टर, मतलब रिजल्ट फास्टर रिटर्न हुआ. ओके, there is another one, refresh ahead. Configure the cache to automatically refresh any recently accessed cache entry prior to its expiration. Okay, so यहाँ पर बेसिकली एक वर्ड होता है TTL which is time to live, कि आपका डेटा कैश में कब तक रहेगा. It's a time to live. Okay, now there is a job we need to run or some services running in cache which will check if data is like about to expire. It will automatically fetch data from storage and update its cache. So basically it's a refresh ahead. Ahead means it does not wait if someone is trying to hit, or if let's say cache miss hota hai to main data update karu. Ye cron job chala ke basically data update karta rehta hai. It's a refresh ahead. Okay, now here's word come asynchronism, which I mentioned here. Now let's understand these two. Just a second. Yeah. So just read its definition. Asynchronous workflow help reduce request time for expensive operations that otherwise would perform inline. Very simple example. I want to upload a file, CSV file, and for that particular CSV file contains 1000 rows. Okay, let's even consider 100,000 rows. अब मेरे को वो सारा डेटा डेटाबेस में डालना है. ठीक है, क्या वे हो सकते हैं, मतलब एपीआई मैंने एक्सपोज कर दिया कि यार आप फाइल अपलोड करो और इस सारे डेटा को डेटाबेस में डाल दो. अब इस डेटा को प्रोसेस करके डेटाबेस में डालना विल टेक डेफिनेटली टाइम, मतलब 2 3 4 5 10 15 20 सेकंड तो आराम से लेगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स कि लॉजिक कैसे लिखा हुआ है. ओके, नाउ अब फाइल अपलोड करूंगा मैं, फाइल अपलोड हो गई. अगर एपीआई सिंक्रोनस काम कर रही है, मतलब वो डेटा प्रोसेस कर रही है और ना वेटिंग फॉर द रिजल्ट, या तो एपीआई टाइम आउट मारेगी या फिर आपको वेट करना पड़ेगा विद इन लाइक 10 15 20 सेकंड का. असिंक्रोनस क्या करता है, असिंक्रोनस बोलेगा कि यार एक काम करो, तुम मेरे को फाइल दे दो, मैं प्रोसेसिंग कर लूंगा और तुम यूजर को बोल दो कि यार तेरा काम हो गया, तुम जाओ. बेसिकली यूजर को रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो कि डन, और बैकग्राउंड में डेटा अपडेट हो रहा है डेटाबेस के अंदर. दिस इज कॉल्ड असिंक्रोनिज्म. बेसिकली यूजर शुड नॉट ब्लॉक, मतलब उसका काम था फाइल अपलोड करना, उसने कर दिया. व्हाई लाइक यूजर वेट कि यार जितना 100,000 डेटा अपडेट होगा, व्हाई शुड आई वेट. दिस इज कॉल्ड asynchronism. Okay, so in asynchronism we have like concept of message queues. So queues is something like काम करते हैं. Let's expand this file upload example. Okay, अब फाइल आ गई मेरे पास. ठीक है, अब फाइल जैसे ही फाइल यूजर ने फाइल अपलोड करी, अब डेटा प्रोसेस होगा. अब डेटा एक लाइक पूरी फाइल एक बार में ओपन होके प्रोसेस हो रही है तो भी भाई दिक्कत है, क्योंकि अगर 100,000 का डेटा मैंने एक बार में फेच कर लिया तो मेरे तो सर्वर की मेमोरी बढ़ जाएगी. नाउ व्हाट शुड आई डू वन थिंग, वी कैन स्टार्ट स्ट्रीमिंग. मतलब देयर इज अ टर्म ऑफ स्ट्रीमिंग कि हम एक फाइल के डेटा को चंक में भेजते हैं, लाइक एक एक रो करके भेजते हैं. इट डजंट मीन कि सारा डेटा पहले फेच करेंगे फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल आइटरेट. नो, we will read that particular file in chunks, और उन chunks को we will pass in queues. So literally there are some queues. I'll create some diagram. Then these are queues. You can say Q1, Q2. So that like the same queue which you studied in linked list. You can say sorry. Yeah, it's a queue data structure separate. Yeah, like data आया यहाँ पे क्यू में एक रो आई, दूसरी आई, तीसरी आई. यहाँ तो बेसिकली इट्स अ प्रोड्यूसर. यहाँ पर एक प्रोड्यूसर जो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, इसने डेटा प्रोड्यूस करा, इसने क्या करा, इसने फाइल दी. ठीक है, यहाँ पर एक कंज्यूमर बैठा है जो उस डेटा को कंज्यूम कर रहा है. फाइल का एक चंक आया, कंज्यूमर को पता चला फाइल का एक चंक आया, मेरे को डेटा प्रोसेस करके डीबी में डालना, उसने डाल दिया. ठीक है, नाउ दिस इज
literally very, you can say not very, it's a highly scalable architecture to process data in terms of queues, because queues में data कभी भी lost नहीं होगा. So इसमें जो tool use होता है, I'll tell you the name of the tool we have, this which is Kafka, and in Amazon it is SQS. The data is in queue and the data never gets, you can say, deleted here until the retention policy, you decided the retention policy, and it guarantees that data एक बार तो process होगा ही होगा. There are multiple like you can say types here. Data process at least once, मतलब एक बार तो process होगा. Data process at most one, कि एक ही बार process होगा and multiple times. So here data will never, you can say, down. और प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, एक एक लाइन करके भेज रहा है तो कोई लोड ही नहीं है. ऑल्सो कंज्यूमर को एक एक लाइन करके मिल रही है तो भी कोई लोड नहीं है. सो इट्स हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर. Okay, so some queues available like Redis is acts as a broker, and RabbitMQ, Amazon SQS. Okay, now there is another term, task queues. Now task queues is something जो हम, मतलब it's a kind of message queue but at a very small level. कि सैलरी आई थिंक सबने सुना होगा कि मेरे को कोई बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट आई सिंपली पुट दैट माय दैट पर्टिकुलर लॉजिक और यू कैन से वर्क इन दी क्यू, तो वो मेरे बैकएंड के कोड में उस लॉजिक को सिंक्रोनसली परफॉर्म करेगा. दैट्स अ वेरी सिंपल क्यू. और समटाइम्स दिस टास्क टू आल्सो यूज फॉर शेड्यूलिंग. फॉर एग्जांपल देयर इज अ वन मेथड व्हिच आई रिटर्न इन पाइथन, देन आई वांट कि यार ये मेथड डेली चले मैंने 9 बजे, तो आई सिंपली शेड्यूल अ टास्क फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड. So here a very simple example. Client है, it's a server and there's a message queue. ये simple data डाल रहा है database में via some queue, but direct भी access direct भी डाल सकता है, but we want faster result, then why should I put direct? इसमें मैं queue अपना 1 सेकंड लगाऊं जब queue मेरा वो काम कर रहा है तो instantly. Okay, now we have this logging. Logging मतलब is a that particular topic sometimes people won't take seriously, but it is also that particular topic which is your life savior. Okay, because if you don't know what is happening in your system, then you cannot resolve a single, or you can say very small bug. Okay, so logging is a process of capturing and storing log messages or events generated by a software application or system during its operation. So basically, if a user hit an endpoint, जहां से API हिट हुआ है क्लाइंट से लेकर, और क्लाइंट को जब तक रिस्पॉन्स मिला है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, रिक्वेस्ट से रिस्पॉन्स तक, अंदर तक कुछ भी प्रोसेस हुआ है, वी शुड लॉग दोज. ओके, क्लाइंट आया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट हिट की, वी शुड लॉग क्या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कितने बजे हिट की, क्या पेलोड पास किया, क्या रिक्वेस्ट हिट की, यूआरएल क्या है, मेथड क्या है. गॉट इट, वी लॉग दैट पार्ट. हमारे पास हमने सेव कर लिया लॉगिंग में. देन रिक्वेस्ट हिट टू दी, जस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर, दिस इज सिंपल. क्लाइंट हुआ, क्लाइंट का सारा डेटा लॉग हो गया. रिक्वेस्ट हिट टू दी लोड बैलेंसर. ओके, नाउ लोड बैलेंसर इज अ रिवर्स प्रॉक्सी. नाउ लोड, वी ऑल्सो नीड लॉग्स फॉर लोड बैलेंसर, कि लोड बैलेंसर ने उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कौन से सर्वर पे दिया. फॉर एग्जांपल वी हैव 3 ABC, तो ए सर्वर पर रिक्वेस्ट करा, इस टाइम करा. ओके, वी आल्सो लॉग दोस. नाउ इस सर्वर ने प्रोसेसिंग में कितना टाइम लिया, बेसिकली इट्स माय एप्लीकेशन, इट्स माय API रिस्पांस, कि API में जो रिस्पांस निकल रहे हैं, रिस्पांस जनरेट हो रहे हैं, वो रिस्पांस आई आल्सो लॉग दोस रिस्पांस. उसके बाद डेटाबेस से जो डेटा फेच करके लाया या डेटाबेस के जो लॉग्स, आई आल्सो लॉग दोस रिस्पांस. अब ठीक है, मैंने लॉग्स इकट्ठे कर लिए, लाइक देयर कैन बी मल्टीपल ऑपरेशंस स्टोरेज इन लॉग्स व्हिच इज S3 ES, or you can say Prometheus. So Prometheus is a time series database. Elasticsearch is a Lucene based search engine where we can store billions of data and scale very efficiently. S3 is a storage based, or you can say file based data. Now अब ठीक है, मैंने लॉग्स इकट्ठे कर लिए. Now what should I do? अब इन लॉग्स को we will, you can say, visualize by some UI tool. So we have 2 UI tools, एक Kibana और एक Grafana. So mainly Grafana में हम सर्वर लेवल के लॉग्स देखते हैं, सर्वर के लॉग स्पेसिफिकली, कि EC2 इंस्टेंस हो गया, आपका वर्चुअल मशीन की वर्चुअल मशीन का अप टाइम कितना है, एक मान लो कि 100 ऑफ रिक्वेस्ट हिट हुई, तो उसकी मैट्रिक्स क्या है, उसने मैक्सिमम कितना CPU यूटिलाइज करा,
क्योंकि जब तक मेरे पास ये लॉग्स होंगे ही नहीं, हाउ वुड आई डिसाइड कि यार आई नीड टू स्केल माई सिस्टम. So these logs are very, very, I can say not very, it's a must. So we should also focus on these logs. Okay. Now it's a last part, the security. So in an every system, security is as much as critical, or you can say you are designing the other components. You need to take care of security. uh, I'm not saying at the same level, but at the higher level, because I'm working in a healthcare company. It's a US healthcare company. So यहाँ पर एक HIPAA compliance होता है. So basically यूरोपियन कंट्रीज में GDPR compliance होता है. According to the HIPAA compliance, अगर मैं किसी भी पेशेंट का PHI पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन लीक कर देता हूँ, then you can imagine the company, the $1 billion company would just shut down because of a PHI, you can say, leak. So security is must. We have multiple ways. Encrypt data transit at rest, कि डेटा ए से भी अगर ट्रैवल कर रहा है वो एंक्रिप्शन होना चाहिए. प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन, गिव लिस्ट प्रिविलेजेस. ऐसा नहीं है कि एक एडमिन की परमिशन सबको दे दी, चाहे वो नॉर्मल यूजर है चाहे वो एडमिन है. देन सैनिटाइज ऑल यूजर इनपुट्स, बेसिकली पैरामीटर्स और यूजर इनपुट्स को सैनिटाइज करना. सो ऑल दो स्टफ. गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड एक्चुअली. Okay, so we also need to take care of security, because it's a, like, in organization there is a separate security teams. They will scan your code, they will scan your Docker images, they will scan your, you can say, pipelines. So not a single vulnerable code is included in your code base. So guys, this is some topics which I covered. Now people sometimes ask, ठीक है यार, हमें सिस्टम डिजाइन के बारे में पता है, हमें अपना सिस्टम बनाना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? So these are some outlines. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा यूज केस क्या है? उन यूज केस को यू शुड नोट डाउन. उनके कंस्ट्रेंट क्या है, उनके अजम्पशंस क्या है, वी शुड नोट डाउन. जस्ट गैदर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द, इफ यू आर अ डेवलपर, यू आर गेटिंग एनी रिक्वायरमेंट टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर सिस्टम, या किसी ने बोल दिया सिस्टम बनाना है, देन यू नीड टू शेड्यूल अ मीटिंग, यू नीड टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंटेशन. क्या मेरे को रिक्वायरमेंट्स बताओ. तो बेसिकली वी डिवाइड रिक्वायरमेंट्स इन टू सेक्शन, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की व्हाट्स द एग्जैक्ट फ्लो, कि एक यूजर होगा और लाइक लॉग इन साइन अप, दिस इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या, कितना स्केलेबल होगा, हाउ मच यूजर्स वी आर एक्सपेक्टिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग वी विल यू कैन से प्रोविजन द रिसोर्सेज. देन इफ एवरीथिंग इज क्लियर, create a very high level diagram. So basically there are two terms, HLD and LLD, high level diagram and low level diagram. So the diagrams which I showed you, like these kind of diagram, are high level diagram. So basically we should know how things work, how data will flow, and how multiple components will interact with each other. You also need to do capacity estimation. So capacity estimation is a like long term vision. Basically अगर मेरे को बहुत आगे तक का देखना है, तब हम capacity estimation करते हैं कि अगर इतने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, इतनी रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं पर सेकंड, इतना डेटा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो मेरा स्टोरेज, लाइक इनिशियल स्टोरेज कितना होगा, सर्वर का साइज कितना होगा. सो ऑल दीज इंक्लूड्स कैपेसिटी एस्टिमेशन एंड बेंचमार्किंग. देन डिफाइन अवर कोर कंपोनेंट्स. अब सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद अपने आर्किटेक्चर में बॉटलनेक्स फाइंड आउट करते हैं. ठीक है यार, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन लॉगिंग, आई मेंशन, लॉगिंग शुड बी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर सिस्टम डिजाइनिंग. क्योंकि अगर लॉगिंग नहीं होगी तो यू वॉन्ट आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स, और अगर बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे तो स्केल नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या ऐड करना है. करेक्ट. फॉर एग्जांपल, यार सर्वर बार बार डाउन जा रहा है, अब लॉगिंग है ही नहीं तो पता ही नहीं है किसको सर्वर डाउन क्यों जा रहा है. अगर लॉग सर्वर पे लॉगिंग होती तो पता होता ना कि यार इसका मेमोरी यूटिलाइजेशन 100% हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% हो गया, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा. अब प्रॉपर लॉगिंग है, मेरे को मैट्रिक्स में साफ दिख रहा है कि यार ये तो 100 पहुंच गया, अब काम चलेगा ही नहीं. एक काम करते हैं, सर्वर बढ़ा देते हैं. सर्वर बढ़ा दिया, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पहुंच गया अपने 33 पे, भाई बढ़िया चल रहा है एकदम. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन द सिस्टम्स एंड ऑल द स्टफ. कब हमें लोड बैलेंसर लगाना है,
हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कब करनी है. लाइक बेसिकली सिस्टम डिजाइनिंग इज नॉट अ, यू कैन से, कोर्स और समथिंग. इट्स अ process where we need to take decision at, you can say, every point. हेयर स्केलिंग कि यार मैं सर्वर को ही अपस्केल कर दूं या फिर मैं मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर बढ़ा दूं. इट डिपेंड्स ऑन यूज केस. डेटाबेस शार्डिंग. अब डेटाबेस, फॉर एग्जांपल मैं ट्विटर का एग्जांपल लेता हूं कि ट्विटर में आई जस्ट सॉ द ट्वीट्स. देयर आर 500 मिलियन यूजर्स इन ट्विटर. ओके. अब मतलब क्या लगता है, उन्होंने 500 मिलियन का डेटा एक ही टेबल में रख दिया होगा? इट्स इम्पॉसिबल. और अगर रख दी भी होगा तो दे आर हाईली ऑप्टिमाइज्ड. ओके. बट अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं तो रख दूंगा, मेरा तो सिस्टम फट जाएगा. मेरे को उस लेवल का तो आता ही नहीं है कि मैं 500 मिलियन का डेटा एक ही टेबल से फैच कर लूं. सो देयर आर टू टर्म्स. एक काम करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं. अब मुझे पता है कि यार इंडिया के यूजर्स है, यूएस के यूजर्स है, और यूरोप के यूजर्स हैं, मतलब मल्टीपल कंट्रीज के हैं. इनके बेसिस पर यूजर्स को डिवाइड कर दो कि इंडिया के यूजर एक टेबल में, यूएस के यूजर एक टेबल में, और यूके के यूजर एक टेबल में. तो मैंने क्या करा, मैंने डेटा को पार्टीशन कर दिया. नाउ आई नीड, अगर फॉर एग्जांपल 500 मिलियन को मैंने नॉट मच 100 में भी पार्टीशन करा तो 1 मिलियन का डेटा बच गया, सॉरी 5 मिलियन का डेटा बच गया. तो बाय डूइंग दिस आई जस्ट ऑप्टिमाइज माय डेटाबेस सिस्टम. Okay. So these are some concepts. Actually, I just planned for Twitter hands-on, but time does not permit. It's around 1.5 hours, but I'll take another session. Let me know Yeah. if you have any question or doubts. Yeah, Please so let me know. there an application to design this system, like just to like application ऐसा कोई है जहाँ पे मतलब हम डिजाइन करके किसी को शो कर सके या अपने लिए भी डिजाइन ऐसा? Multiple. I'm using this Miro. अच्छा This is अच्छा. Miro. Yeah, मतलब we have this Figma, Miro, and Draw.io. मतलब मैं पर्सनली ये 3 यूज करता हूँ. अच्छा और अच्छा. इसमें से Miro एंड Figma लाइक बेस्ट सबसे बेस्ट Miro है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब बहुत आराम से है कि जैसे यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल एक बॉक्स आ गया. तो वेरी क्विक डिजाइन, और कलरफुल भी है, काफी चीजें हैं. Figma तो if I remember correctly, it's used for user interface design, right? या Figma, so basically Figma I think it's FigJam. Okay. फॉर एग्जांपल मैंने स्लाइड्स के लिए काफी बनाए थे. सो दीज आर वेरी हैंडी. इफ आई टॉक अबाउट FigJam, so I use this for my own HLD. तो Figma में FigJam आता है, so you can create these. There are multiple images Okay. available. Yeah, Okay. it's a FigJam. It's a FigJam. Yeah. Okay. Okay. और Draw.io काफी यूज करते हैं, बट आई पर्सनली डिडंट रिकमेंड Draw.io बिकॉज इसमें मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा है. लाइक इस तरह की फिजिबिलिटी और इतना लाइक ऑल चीजें इसमें नहीं है. अच्छा Figma में अच्छा. like there are lot of things, so you can use those because these are some design tools, but you can utilize for creating UI representation of system as well. Okay. 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 Got it. And if you just told that there's no course for system design, no. No, Sir. there are course. I'm not saying there is no Okay. course. There are Okay. course, but they won't tell you कि यार तुम्हारा system कैसा होगा, because system design, or you can say system will create according to the requirement. They will also teach you these terms, as well as I also plan for the hands-on कि एक ट्विटर बनाते हैं बढ़िया सा, बट अभी टाइम डज नॉट परमिट. आई विल टेक अनदर सेशन कि हम खुद से डिजाइन करते हैं कि मेरे को एक रिक्वायरमेंट आती है कि ट्विटर को डिजाइन करो. अब मुझे पता है कि ट्विटर कैसे चलता है, तो एक काम करते हैं, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्केल करते हैं. ऑल्दो वहां तक नहीं पहुंच सकते, बट एटलीस्ट ट्राई करते हैं कि यार हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, डेटा को किस लेवल का स्केल कर सकते हैं हम अपने सिस्टम को. ओके. सो बाय यूजिंग दीज टर्म्स हमें ये पता होगा कि यार मेरे को कौन सी जगह पे क्या यूज करना है. फॉर एग्जांपल मेरे को डेटाबेस से डेटा फास्टर लेके आना है. अब मैं डेटाबेस से जितना टाइम लगेगा उतना तो लगेगा, बट आई नो कि रिपीटिव डेटा लाना है, तो एक काम करते हैं, इन मेमोरी पर रख देते हैं उसको, तो फास्टर आएगा. इट्स अ कैशिंग. तो यहाँ पर मेरे को कैश यूज करनी है. मेरे को डेटा अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल जीबीज में डेटा अपडेट करना है, बट ये तो यार 15 20 25 सेकंड ले रहा है.
what should I do? एक काम करते हैं, we should use asynchronous mechanism. So you should know all those mechanism, all those terms, or you can say practices. But सिस्टम तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन होगा, स्केल कैसे करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो डिफर करेंगी, और कौन से सिस्टम में कब क्या बॉटलनेक होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, लॉग से। और लॉग मस्ट है, हमें पता है लॉग होने चाहिए, किस किस के लॉग्स होनी चाहिए, बट अब लॉग्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट्स आल्सो अनदर सिस्टम डिजाइन चैलेंज। Okay. I mean, so yeah, it's a vast topic. Correct. Because in my organization, designing a log is also a separate system design part. But you can imagine there are TBs of log generated by a organization, or you can say on a weekly, monthly basis. So I had a you question. Sorry. Yes. Yeah. So like जैसे कि logs का एक फंडामेंटल है, तो like जैसे बजट कंस्ट्रेंट है तो क्या करा जाता है कि प्री डिफाइंड जो लॉग मैकेनिज्म है उनको यूज करना है, जिस लाइक खुद का लॉगिंग Sorry, क्रिएट sorry. करना है। Could you please repeat again? Sorry. आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉग्स, लाइक कैसे लॉग्स को कैसे मेंटेन करा जाए। Yeah. So सबसे पहले समझते हैं कि लॉग्स क्या है। लॉग्स ऐसा तो नहीं है ना कि कोई यूजर डेटा जनरेट कर रहा है, लॉग्स आर जनरेटिंग विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिली सेकेंड्स। ओके, अब लॉग्स को हम डेटाबेस में नहीं रख सकते, क्योंकि यार लॉग्स के लिए डेटाबेस बनाना इज रियली अ वेरी बैड अप्रोच। सो जनरली लॉग्स हम सेव करते हैं फाइल्स में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चन कि लॉग्स में हमें क्या रखना चाहिए। अब लॉग्स को हम डिवाइड, चलो यहीं पे एक बार खुद से ही मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं कि डेटाबेस के लॉग्स हैं। अब हम अगर कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं, पोस्टग्रिस हो गया, मोंगोडीबी हो गया, एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है कि यार अगर तुम्हारा कुछ भी फटेगा, कुछ भी क्वेरी फटेगी, हम उसके लॉग्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट अब तुम्हें ये करना है कि तुम्हें लॉग्स को उठा के कहीं अपने पास स्टोर करना है, और उनसे तुम्हें एक टूल बनाना है जिससे तुम फ्रिक्वेंटली इनको एक्सेस कर सको, ठीक है। और सर्वर है, अब एनजिनिक्स ने बोल दिया कि यार तुम्हारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, मतलब मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट आएगी, मैं उस रिक्वेस्ट का लॉग बना दूंगा, उसका स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दे दूंगा, अब तुम्हें उस लॉग्स को उठाना है। अब तुम्हें उठाना कैसे वो तुम जानो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनजिनिक्स, डेटाबेस सर्वर, नॉर्मल सर्वर, दे आर कॉन्टिन्यूसली रनिंग प्रोसेस, मतलब ये डाउन नहीं होते, दे आर कॉन्टिन्यूसली रनिंग एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूसिंग द लॉग्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो थर्ड पार्टी टूल आते हैं, फिर कुछ आते हैं, यहाँ पर हम अपना ना एक एजेंट बिठा देते हैं बीच में, एंड व्हाट दे डू, वो क्या करेगा, वो एजेंट जैसे लॉग्स आते रहेंगे ना, उन लॉग्स को उठा के एक स्टोरेज में डालता जाएगा। इट कुड बी इलास्टिक सर्च, S3, और यू कैन से फाइल स्टोरेज, उसमें डालता जाएगा, और वहां पर वो लॉग्स इकट्ठे होते जाएंगे। अब लॉग सर्वर जो जनरेट कर रहा था वो हमारे पास आ गए, ठीक है। अब लॉग्स हमारे पास है, तो वी कैन हम उन लॉग्स का पैटर्न देख के कुछ भी अपना टूल बना सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि लॉग्स कैसे हैं। सबके अलग अलग है। एप्लीकेशन लॉग्स के अंदर हमारा एपीआई का डेटा होता है। अब उस एपीआई डेटा का, अब एप्लीकेशन तो हमारी है, कोड मैंने लिखा है, तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि यार मेरे कोड का लॉग्स किस तरह से दिखेंगे आपको। बट ये टूल्स तो थर्ड पार्टी टूल्स हैं, तो इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि यार लॉग्स तुम्हें मिलेंगे, टाइम सीरीज डेटा में मिलेंगे, और तुम इनको देख लो तुम्हें कैसे चलाना है। तो प्रोमीथियस इसीलिए होता है। प्रोमीथियस क्या करता है, प्रोमीथियस एनजिनिक्स और वर्चुअल मशीन्स का जो लॉग्स हैं, तो वो टाइम सीरीज डेटाबेस में होते हैं, वो उनके टाइम सीरीज डेटाबेस को उठा लेता है, और उठा के उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने पास स्टोर करता है, और उसको फिर बोलता है कि यार ठीक है, मैंने स्टोर कर लिया, अब तुम एक काम करो, अब तुम उसको ग्रिफाना से ऐसे दिखा दो यूआई बना के। अब ग्रिफाना बोलता है यार मेरे पास सपोर्ट है तुम्हारे टाइम सीरीज डेटाबेस दिखाने का, तुम मेरे को बस एक जेसन फाइल दो, मैं बस डैशबोर्ड बना के दे दूंगा। तो दिस इज द फंडा। द पॉइंट इज कि जो लॉग्स आ रहे हैं ना, हमें उसको कैप्चर करना है। अब वो कैप्चर कैसे करना है, उसके लिए वी हैव मल्टीपल एजेंट्स। फॉर एग्जांपल ईएल के स्टैक सुना होगा आई थिंक सबने, ईएल के। नहीं। हाँ, सो ईएल के में क्या होता है, इलास्टिक सर्च होता है, एक होता है लॉगस्टैश, एक होता है किबाना। तो इलास्टिक सर्च एक डेटाबेस है जो बहुत हाईली यूज होता है फॉर सर्चिंग पर्पस, बिकॉज इट कैन स्केल मैसिवली और स्टोर मिलियंस ऑफ डेटा। किबाना इज अ यूआई टूल, मैं लेट मी दिखा भी देता हूँ एक बार। किबाना डैशबोर्ड, तो किबाना इस तरह का डैशबोर्ड देता है हमें। अब ये डैशबोर्ड बनेगा तो डेटा से ही ना। अब डेटा कहाँ पे है, डेटा इलास्टिक सर्च में है, और डैशबोर्ड बनेगा, बट इलास्टिक सर्च में डेटा आएगा कहाँ से, तो उसमें क्या होता है, लॉगस्टैश एक टूल होता है, लॉगस्टैश। लेट मी शो यू ईएल के।
ओ सॉरी, ELK स्टैक, ठीक है। सो ELK स्टैक में लॉग्स थे, लॉग्स टेस्ट वो टूल है जिसने उस डेटा को उठा लिया अपने पास, ये बीच में जाके बैठ गया, मतलब एक डेमोन होता है ना, डेमोन, डेमोन क्या करता है कि वो किसी भी दो सर्विसेज के बीच में जाके बैठ जाता है, कहेगा ठीक है अब तुम A से B कनेक्ट कर रहे हो ना, तुम कनेक्ट कर लो, बट तुम्हारे बीच में जो बातें होंगी वो मैं सुन लूंगा। तो इतना सिंपल सा फंडा है। तो ये वही लॉग्स उठा लेता है बीच में से और उस लॉग्स को पुश करेगा इलास्टिक में या फिर किसी भी स्टोरेज में, वहां से हम उसको शो करा देंगे। तो लॉग्स का फंडा इतना है। अब इसमें मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं कि यार मैं 3 साल पुराने लॉग्स क्यों रखूं, तो हम लॉग्स को डिलीट करते जाते हैं विद इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जो भी हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है 1 साल पुराने लॉग्स नहीं चाहिए, 1 साल के सारे लॉग्स उड़ा दो एक क्रॉन चला के, एक जॉब चला के। तो ये फंडा है लॉग्स का। वही मेरे को अभी पूछना था कि लॉग स्टोर करके कितने दिन तक का रखना जरूरी है। रिटेंशन पीरियड है, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर तुमने बोला कि यार 1 हफ्ते में लॉग्स डिलीट कर दो, एक्चुअली हेल्थ केयर डेटा में होता है हमारे साथ कि हम्म। मतलब लॉग्स को डिलीट नहीं कर सकते हम। अगर हमने लॉग्स डिलीट कर दिया, क्लाइंट बोला यार मैंने तो ये रिक्वेस्ट करी थी, ये चली नहीं, अब हम ढूंढ रहे हैं बैठ के कि लॉग्स कहाँ है, लॉग्स मिलेंगे नहीं। सो हाउ कैन वी प्रोवाइड द प्रूफ कि यार ये रिक्वेस्ट आपने करी थी, देखो इसको, है ना। तो एप्लीकेशन के लॉग्स इंपॉर्टेंट और सर्वर के लॉग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके ओके। आई मीन इट्स अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, सिस्टम डिजाइन ही बस। I think are you guys in college or working? नो एक्चुअली आई एम इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ। Okay, तो थोड़ा सा भी समझ में आया इसका मतलब कि है क्या? हाँ आया तो हल्का फुल्का, हल्का फुल्का मतलब काफ़ी हल्का पहले पता था कि जैसे हमने खुद किया था डिज़ाइन की, हाँ यहाँ से फिर डेटाबेस में जाएगा, ऐसे बहुत सिंपल डिज़ाइन था ये। जीमेल का ये फॉर्म्स होते हैं ना, ये गूगल फॉर्म्स होते हैं, उन्हें उनका क्लोन कर रहे थे तब थोड़ा बहुत पढ़ा था बस। सो अभी पता चला कि मतलब क्या है क्या नहीं है, सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें। हाँ मीन्स काफ़ी गाइस काफ़ी। बाकी आई थिंक काफी तो लीव कर गए जो बाकी है कॉल पे, थोड़ा म्यूट करके बताओ कि थोड़ा भी आइडिया हुआ, कॉज ज्यादा हाई लेवल तो नहीं हो गया, मतलब डीप में इतना कि बिल्कुल सिर के ऊपर से चला गया हो। कुछ कुछ एप्लीकेशंस जो आपने बताया वो तो ऐसे है कि हाँ उनके बारे में कुछ नहीं पता था, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर तक गया, बाकी ऐसे सिस्टम नहीं देख, डिज़ाइन क्या होता है वो तो समझ आ गया। मेरा क्या फंडा होता था जब मैं मतलब कॉलेज में थोड़ा सेशन देता था कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही ना, तो जस्ट ग्रैब द टर्म्स, टर्म्स नोट कर लो अपने पास और जाके पढ़ो उनको कि क्या है वो। समझ नहीं आ रहा, किसी वर्किंग प्रोफेशनल सीनियर जो है जो उनके एक्चुअल यूज कर रहे हैं वहां से देखो, यू विल गेट टू नो, नो इशू।